Assalamu alaikum and a very good evening to all the people watching. I'm Aman Khan and welcome back to Evolve Talks. I'm really sorry for the delay we have been having in the sessions. हम लोग काफी अरसे के बाद एक नई episode कर रहे हैं. We have been busy with to come up with some new interesting sessions for you all. So today we are here to talk on a very interesting topic. You might have all known from the thumbnail that was that let's live for a cause. So it's very important to live for a cause, and especially for a good cause. हमने जब evolve talk start की, so we also had a cause in mind कि आप लोग we started in the portion of that when there was all COVID situation and we all were depressed and we wanted to talk about something positive, something inspiring for you all. So it's very important to live for a cause. So today I have with myself a wonderful lady, Sadaf Usman. She is the founder of For a Cause, a social enterprise which mainly focuses on empowerment and has many wonderful initiatives for spreading positivity and much more. So, without any delay, I'll have Sadaf online and we will talk about it. And we'll also talk that why it's important to live for a cause. So, I'll have Sadaf on the line. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum assalam. Thank you so much for having me here. I'm very well, and I hope you're doing well too. I'm great, and it's my pleasure to have you. So, Sadaf, I was just telling the people that today we are going to talk about why it's important to live for a cause, and who would have known that better than you, who have an organization named For a Cause. So, with how it's like मैं ये भी बताई थी कि जब हमने wall talk start किया, so we also had a cause in mind. So, before we get into topics, so मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि I want you to tell the people watching that what is basically For a Cause. Thank you so much once again. एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का बताऊंगी. I think you would know about it, already. The golden circle का एक कॉन्सेप्ट है, और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि we all know what we are doing and we all know how we are doing it. Like, a Yeah. child knows that he goes, he studies, and how is he doing it? He goes to school. But why are you doing it is the big question. So हर चीज का why अगर हमें पता चल जाए तो शायद हमारी उसके लिए पैशन बढ़ जाए, या हमें रियलाइज हो जाए कि ये हमारे लिए नहीं है, और दिस इज नॉट आवर कॉलिंग, या ये मकसद नहीं बनता हमारे लिए. सो वाई जानना बहुत जरूरी है. हर काम के पीछे कोई ना कोई कॉज जुड़ा होना, कोई ना कोई इसका ग्रेटर वाई होना. बिकॉज मनी एंड अदर things they do come with the package. आप कोई भी काम करो उसमें obviously hard work and money, you're doing it for that, but उसके साथ एक कोई greater अगर आप objective join कर लो तो वो आपको, मुझे लगता है, fuel भी देता है अपने काम को जारी रखने के लिए when things become tough. So For a Cause की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. I was a very passionate writer and reader, और किताबों से भी बहुत ज्यादा लगाव था, और बहुत शौक था कि कोई ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिले जहां पर बुक से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड कोई इवेंट्स होते हों, कोई टॉक्स होती हों, कोई मीटअप्स और इंटरैक्टिव डिस्कशंस होती हों, और मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले. दिस इज बैक इन 2016 की आप बात समझ लो. And so I was like looking for all these avenues where I could go and listen to literary discussions and all. और that was kind of एक होता है ना कि necessity is the mother of invention. So I think वही हुआ कि जरूरत फील हुई कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, स्पेशली फॉर लेडीज. आई फेल्ट के खवातीन के लिए, एंड स्पेशली फॉर मॉम्स, होम मेकर्स, जिनको हमारी सोसाइटी अज्यूम करती है that now that they are married, now that they have kids, they would have no need for any such intellectual outlet, which I think is very unfortunate, because हमारी लड़कियां जो हैं बहुत brilliant होती हैं. They have amazing ideas, they have amazing talent, और वो अपनी लाइफ के अंदर और engagements के अंदर और responsibilities के अंदर, yes they do get busy in that, but that doesn't mean कि उनके लिए avenues नहीं होने चाहिए, या इतनी ऐसी कोई opportunities नहीं होनी चाहिए कि वो अपने skills को और अपने talents को carry forward कर सकें. So I was going through that kind of phase where I had young kids, and I did not see any outlet where I could have my intellectual kind of space. So I started For a Cause with a friend, and it was just 3 of us. और हमने शुरू किया एक बुक क्लब से, कि किताबों के थ्रू जो है वो हम अपने आप को जाने, हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाए. जैसा आपने भी मेंशन भी किया, हमारी जो जिस टॉपिक पे हम काम करते हैं, जिन वैल्यूज पे, दे आर सेल्फ एम्पावरमेंट, tolerance, non-judgment, and respect. So we work on these things. We work on becoming better human beings. हमारा मकसद ऐसा, कुछ लोगों को बहुत अजीब लगता है कि आपके events पे people come and they talk about all these things.
So do they become better human beings? We say we are putting an effort, we are trying. That's all one person can do. आप एक कोशिश कर सकते हैं, आप एक बीज डाल सकते हैं, फल तो अल्लाह की जात लगाएगी. So इस Yeah. फेथ के साथ काम शुरू किया कि बैठेंगे, किताबें पढ़ेंगे, किताबों से कुछ सीखेंगे, किताबों से वो रिश्ता बनाएंगे जो बियॉन्ड द डिग्री एंड बियॉन्ड द करिकुलम एंड बियॉन्ड द सिलेबस हो. So इस तरह से कुछ जर्नी शुरू. Great, great, wonderful. Sadaf, आपने भी अभी जिक्र किया कि it all started for the love of book reading and for the love of literature. So you guys have three initiatives mainly. I read that on your page. That is, one is one main is the reading circle. So if you can tell the people about it, okay, what is basically the reading circle? रीडिंग से तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा बुक क्लब है. इट्स वीव हैड आई कांट इवन आई थिंक हमने काउंट तो रखा हुआ, लेकिन हमारे बाय मंथली मीटअप्स होते रहे और मंथली मीटअप्स होते रहे. लॉकडाउन में चीजें कुछ आपको पता हो गई मुश्किल टू, बिकॉज वी कीप रियल टाइम इवेंट्स, वी डोंट डू देम ऑनलाइन, बट हम लोगों के इवेंट्स जो हैं वो पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, वेन्यू पार्टनरशिप्स के साथ होते हैं. सो रीडिंग सर्कल इज अ बुक क्लब फॉर लेडीज. Everyone is invited. We create Facebook events. वहां पर हम अपना शेयर करते हैं इवेंट का. We send out invites. We partner with any cafe or any space that is available to partner with us. हम लोगों को कहते हैं आप किताब ले आइए. It's not about which book to read, as long as you are reading. So we don't specify a book, which is something which makes us unique, because हम impose नहीं करते अपने members के ऊपर. We welcome all genres, we welcome all languages, we welcome diversity. क्योंकि हमें लगता है कि माशरे में इतना आप देखो ना पोलराइजेशन हो गई है कि लोग एक से दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते. लोग एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बारे में जानने को नहीं तैयार. हमने कुछ बायसेस फॉर्म कर लिए हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं, कुछ हमने सुना के कहीं से किसी ने कह दिया कि अंग्रेज ऐसे होते हैं, किसी ने कह दिया कि हिंदू ऐसे होते हैं, किसी ने किसी के बारे में. सो वी नीड टू नो पीपल ऑन अ ह्यूमन बेसिस. एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है और हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. दैट इज मोर दैट कनेक्ट्स अस देन व्हाट डिवाइड्स अस. सो ह्यूमन लेवल पे जब हम कनेक्ट करते हैं बुक्स के थ्रू, आप देखिए डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स लोग लेकर आते हैं, और कई दफा ऐसा होता है कि एक किताब की जो बात है वो दूसरे ऑथर के साथ इतनी ज्यादा मिलजुल रही होती है, while they come from entirely different continents. तो ये चीज को हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि आप आइए हमारे सेशंस के ऊपर, अपनी किताब लाइए, अपनी किताब से कुछ पढ़िए, एंड देन द कन्वर्सेशन मूव्स अराउंड. सो वो फॉर अ कॉज का एलिमेंट ये कि वी आर रीडिंग फॉर अ कॉज, एंड द कॉज इज लाइफ स्किल, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड पॉजिटिविटी. Great, great. Sounds so fun. So Sada, for the love of books, I also happen to know that you are a writer yourself. So if you can tell us a bit about your work, that is Raaz-e-Neha. राज़-ए-नेहा जो है जी, वो मेरे बहुत अच्छे जो एक ट्राइब सी बन गई हमारी. अमन, जब हमने रीडिंग सर्कल और फॉर अ कॉज शुरू किया तो हमें नहीं पता था कि इतना स्ट्रॉन्ग ये चीज होगी. इतने अच्छे लोग मिल गए और इतने लोगों को इतना यहाँ पर आके पॉजिटिविटी मिली. दे फेल्ट लाइक दे कुड टॉक हियर. they didn't have the fear of judgment. कोई ये सोचेगा मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे बारे में कुछ ऐसा ना, कोई जहन में बात आए या कोई कमेंट ना आ जाए. एक रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट हमेशा यही रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू मेंटेन दैट, और एक कम्युनिटी सी बन गई. सो माय कम्युनिटी काइंड ऑफ पुश्ड मी, क्योंकि मैं रैंडम इधर उधर अपनी शायरी करती थी, कभी कभी कुछ लिख दिया, कुछ स्क्रिबल कर लिया, एंड दे एनकरेज्ड मी टू गो अहेड एंड राइट. सो किताब भी कुछ इस तरह है कि लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए, लोगों का खुद से रिश्ता बेहतर हो जाए, हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकें, और हम अपनी जो लाइफ के अंदर मिस्ट्रीज है ना, बिकॉज इट्स राज़-ए-नेहा, तो जो लाइफ की मिस्ट्रीज हैं उनको समझ सकें कि कहीं ना कहीं फेथ का एलिमेंट हमें बहुत ज्यादा ना ग्राउंडेड रखता है. क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं आईवीएलपी पे गई थी, और आईवीएलपी प्रोग्राम में माय थीम वाज bridging the gap between communities and promoting peace and tolerance और नॉन वायलेंस को प्रमोट करना. तो हमने वहां पर ये रियलाइज किया कि जहां पर कम्युनिटीज के अंदर फेथ या तो लैक करता है या फिर फेथ को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, वहां पर लोग वायलेंट हो जाते हैं. जहां पर फेथ के बारे में गलत इंटरप्रिटेशंस होती हैं या उन बच्चों को मिसगाइड कर दिया जाता है, दे गो इनटू वायलेंस बिकॉज आवर रिलीजन प्रीचेस पीस एंड हार्मनी. सो इस एलिमेंट को भी लेते हुए कि हमें अग्रेसिव होने, हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाने की और अपने भूल जाने की, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे प्रोमिसेस हमें अल्लाह ने किए, हमें उनको भूलने की जरूरत नहीं है. बिकॉज
देयर इज यू नो अ मास्टर प्लानर फॉर थिंग्स, और वो चीजों को बेहतर करने वाला है। तो वो फेथ देना, आपको पता है आजकल डिप्रेशन का भी कितना इशू है और यूथ के अंदर भी कितना ज्यादा। आई फील देयर इज अ डिस्कनेक्ट। वो जब कनेक्शन हमारा वीक होता है तो देन वी इंडल्ज इनटू सच थिंग्स। हाँ, इश्यूज भी होते हैं, इट्स अ मेडिकल इशू एज वेल, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक, मुझे आई कॉल इट द मिसिंग लिंक। और मुझे लगता है अगर वो लिंक हमारा स्ट्रांग हो जाए तो हमारे बहुत से यू नो साइकोलॉजिकल इश्यूज, हमारी लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप्स में आते हैं, बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। Definitely, definitely. So Sadaf, you just we just happen to love the idea जो आपने अभी अपने book का explain किया. So will it be possible कि अगर हम by the end of the session you can read an expert from the book for us? I would love to. It's been a long time that I've read from the book, so मैं खुद मिस कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत तैयार हूँ, आपने फरमाइश की, so why not? Okay, so sir, this is also a point कि हम सारे इस COVID और इस लॉकडाउन सिचुएशन से निकल कर आए, and one thing that we all have noticed, I think, वो ये है कि the online conversations and the online interactions, उसमें वो मजा नहीं आता. It's just doesn't have that thing in it. So you guys also have an initiative that's named Mulaqat. So why is it so and what is it? अगेन मुलाकात भी एक बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, वो भी नई चीज थी। तो अमन, हमें लगा कि ना हमें ऐसे स्पेसेस अगेन वो चाहिए जहां पर लोग बैठे और बात कर सके। सो वी स्पेसिफाई अ टॉपिक। मुलाकात के अंदर हमारा इंटरैक्टिव सेशन होता है, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर वेलकम। उसमें हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सेल्फ डिस्कवरी हो जाता है, कभी कभी हमारा था शिकवे से शुक्र तक का सफर, कभी द आर्ट ऑफ मेकिंग अ कन्वर्सेशन, कभी फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस क्या है, माफी क्यों मांगनी चाहिए, माफी क्यों देनी चाहिए, माफ ना करने से क्या होता है, माफ करने के बाद कैसी फीलिंग होती है। आपको पता है अमन, कई दफा हमारे पास ना वो नहीं होते, पर्सपेक्टिव्स नहीं होते। मुझे किसी ने फॉरगिवनेस वाले सेशन पे कहा कि मेरे उस्ताद ने कहा है कि जो अल्लाह से चाहते हो ना कि वो तुम्हारे साथ सलूक करे, वो अल्लाह के बंदों से करना शुरू कर दो। तो तुम अल्लाह से चाहते हो, तुम्हें माफ कर देते हो तुम अल्लाह के बंदों को। सो यू नो ये चीजें, फिर ये पर्सपेक्टिव मेरे लिए नया था, बिकॉज वी क्वेश्चन व्हाई शुड आई फॉरगिव हिम, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, आई विल नेवर फॉरगिव हिम, और मैं तो बदला लूंगा या मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर किसी ने कहा कि फॉरगिवनेस इज लाइक सेटिंग अ प्रिजनर फ्री एंड टू नो दैट द प्रिजनर वाज यू। तो अब ये देखिए कितनी डीप सी बात है कि जब हम माफी नहीं करते तो हम अपने आप को एक कैद में रखते हैं, एक बिटरनेस की कैद में, एक हेट्रेड की कैद में, एक यू नो हिसाब बराबर करने की उसमें रहते हैं, हम जुस्तजू में रहते हैं, हम अपने आप को ही एक केज के अंदर रखते हैं। सो ये सारे पर्सपेक्टिव नहीं मिलेंगे जब तक अमन हम बैठेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम लोगों को एंगेज नहीं करेंगे। और हमारे सेशंस की जो मैं कहूंगी ब्यूटी है कि उसमें कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, हम सब एक दूसरे को वैल्यू करते हैं। एवरी participant is welcome to share their input, and we are just the moderators. Me and my partner Sarish, we are just there as facilitators. हम लोगों को encourage करते हैं, हम सवाल पूछते हैं, then we kind of circulate it. तो हमें लगता है कि हर इंसान चाहता है कि उसको सुना। Non-judgmental friends. अगेन दैट थिंग। और उसमें यही होता है कि बहुत से लोगों का कैथारसिस हो जाता है, बहुत से लोगों को कंफर्ट मिलता है, इट्स लाइक अ सपोर्ट ग्रुप, और लोग फील करते हैं कि दिल हल्का हो जाता है, और हम कोई टैंजिबल चीज भी नहीं देते लेकिन लोग खुश होते हैं। सो ये एक सक्सेस का आई थिंक बहुत बड़ा एक साइन है। एंड व्हेन वी डोंट डू इट, बिकॉज वी बीन ऑन अ ब्रेक विद मुलाकात, सो पीपल मैसेज अस एंड दे आस्क अस के why, when are you resuming and why are you not keeping them? So we must be doing something right. So I'm also loving the idea. बल्कि मैं आपसे next question यही पूछने लगी थी कि how can people join you on मुलाकात, and are you guys planning anytime anything soon? आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज अब चीजें थोड़ी बेहतर हो गई हैं। हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि जूम पे करें। जूम यू नो इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज उस तरह से कि आप वही ऑडियंस के साथ आप उस तरह एंगेज नहीं हो सकते। वी आर काइंड ऑफ खत्म हो जाता है। Exactly. So we are kind of gauging के how keen people are to meet up. अभी वो भी open, आपको पता है events का भी अभी नहीं इतना पता, लेकिन inshallah very soon we will be resuming. हमारा page है for a cause. Please go ahead, join it, like the page. For ladies, we have launched our Facebook group recently. It's called Dear Zindagi. और वी केप द पॉजिटिविटी देयर। सो वो डियर जिंदगी हमने इसलिए रखा कि यू नो जो भी इसको पढ़ेगा तो जिंदगी से शिकायतें भी बहुत होती है, लेकिन जब आप लिखते हो ना, उसमें टाइप करते हो डियर जिंदगी, तो एकदम से जरा ना होता है कि जिंदगी को एक एंडेयरमेंट आ जाती है उसके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह
तो वो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम भी ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड वी केम अप विद द आइडिया. सो हम अपने ग्रुप मेंबर्स को डियर जिंदगी ही कहते हैं. एंड ऑल लेडीज आउट देयर, दे आर मोर देन वेलकम टू जॉइन आवर फेसबुक ग्रुप. हम लोग अपने रीडिंग सर्कल को थ्रू जूम सेशंस तो वी हैव रिज्यूम्ड, एंड इंशाल्लाह मुलाकात विल आल्सो बी रिज्यूम्ड सून. Beautiful, beautiful. For all the people watching, I'll be also putting the link of both the groups for a cause and Dear Zindagi above in the link so you guys can join it. So, moving forward, Sadaf, so far I'm loving all the initiatives. So, being a mommy, I think you've also added the kids element in for a cause. So, you guys have another initiative that is storytelling. एंड आई थिंक Hmm. स्टोरी का ओवर द इयर्स एक बहुत फैक्ट खत्म हो गया है. द किड्स आर मोर लाइक ऑन आईपैड्स, वो जो स्टोरी बुक्स है वो वाली चीजें खत्म हो गई हैं विद टाइम टू टाइम, एंड वी नीड टू कीप दैट अलाइव. सो व्हाट इज दिस स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव अबाउट? उसका भी मकसद यही था कि अगेन, क्योंकि हमारे नॉर्म्स चेंज नहीं होते. आप देख रहे होगे कि मैंने जैसे आपको रीडिंग सर्कल की बात की, फिर मुलाकात की बात की, इवन किड्स फॉर अ कॉज में भी एलिमेंट वही है कि बच्चों को बेहतर इंसान बनाया जाए, उनमें एम्पैथी क्रिएट की जाए, उन्हें अवेयर किया जाए. और सोशल स्किल्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो गैजेट्स जनरेशन है, उनके सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा वीक है, एंड दे रियली नीड टू वर्क ऑन दोज. और उसका कसूर हमारा है जो हाथों में उनके पकड़ा रहे हैं वो गैजेट्स. अगर हम उनको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, आई नो कि जी सब कुछ आप नहीं ले सकते हो और आजकल जमाना ऐसा है, आई टोटली, बट वी नीड टू बी द पेरेंट, वी नीड टू बी द बिगर एडल्ट देयर. आई कीप टेलिंग एवरीवन के यार वी हैव टू बी दैट. आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन छोड़ दोगे तो कोई और उधर आके बैठ जाएगा. और बच्चे जो है वो माँ बाप की जगह पे आके बैठ गए हैं बिकॉज दे डिक्टेट द टर्म्स. सो बच्चों को एंगेज करना है हेल्दी कन्वर्सेशंस में, हेल्दी इंटरेक्शंस में, उन्हें कंफर्टेबल करना अराउंड डिफरेंट पीपल, क्योंकि वो अपने ही एक गैंग के अंदर, अपने ही एक ग्रुप के अंदर, वो उससे बाहर नहीं निकलते उस सोशल सर्कल से. सो मुझे लगता है बहुत जरूरी है. किड्स फॉर अ कॉज हमारा बिल्कुल स्टोरी टेलिंग का इनिशिएटिव है. हम अलिफ लैला बुकबा सोसाइटी के साथ हमारी बहुत दफा पार्टनरशिप्स हुई हैं, हमने वहां पर भी इवेंट्स होस्ट किए हैं. अगेन पेंडेमिक की वजह से जो है वो आपको पता है बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा एक केयर करना और सब कुछ इतना, अब आपको पता है इतनी प्रिकॉशंस और एसओपीज के साथ हो रहा है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट फॉर दिस, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल भेजना इज अ बिग डिसीजन फॉर देम. सो वो चीज इस वजह से, लेकिन देयर सो मेनी अदर इनिशिएटिव्स आर वर्किंग टुवर्ड्स किड्स. तो हमारा ज्यादा फोकस वो रीडिंग सर्कल और मुलाकात की साइड पर है. किड्स के लिए भी हम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज आई थिंक देयर अदर सो मेनी ग्रुप्स आउट देयर हु आर डूइंग अ मच मच बेटर जॉब. और आई वुड शेयर देयर नेम्स विद यू टू, यू कैन डू कॉल देम बिकॉज वो बहुत अच्छा बच्चों के हवाले से काम कर रहे हैं. Great, great. I'll surely keep that in mind. So Sada, when we keep in mind the point of a cause, a good cause, एक cause ऐसा है जिसको I think हम लोगों ने काफी ऐसा काफी neglect किया है, and now we are getting a wake up call, and it's climate change. It's taking care of our climate, and we have been generations behind us. If you see the boomers, they literally didn't care about it. So वो आहिस्ता 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 चीजें accelerate होती होती, we're up to this point that where it's an alarming rate right now. So I recently got to know that you did training on climate reality that is very famous for that climate change. So if you can tell the people watching how important it is कि हम लोग climate change के बारे में awareness अपने आप में भी create करें, and especially for the young mommies watching, who it's very important कि हम छोटी एज से बच्चों को भी बताएं कि it's happening and we need to do something about it. हमने अपना carbon footprint reduce करना है, हमने plants लगाने हैं. So if you can tell something about that. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि women need to realize their power. एक औरत के पास बहुत पोटेंशियल होता है और एक औरत के पास एक बहुत स्पेशल स्किल होता है जो मल्टीटास्किंग का है. आपने जैसे बात किया, आई एम अ मदर, आई एम अ टीचर एज वेल बाय द वे. आपने मेरी किताब की बात की, आई रन फॉर अ कॉज, मैं आईवीएलपी भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये सब कुछ होता है. लेकिन हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है और थोड़ा सा हमें अपने साथ जो लोग हैं, फैमिलीज है, उनकी सपोर्ट चाहिए होती है. लेकिन प्लीज डोंट पुट योर लाइफ ऑन डोंट पुट अ फुल स्टॉप टू योर लाइफ. बहुत हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम समझते हैं अच्छा जी अब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, सो नाउ यू नो लॉन्गर हैव एनी राइट टू हैव एनी ड्रीम्स. इवन आपको अपने लिए पॉसिबिलिटीज नहीं सोच सकते. और रमन ये जो कल्चर है ये अभी तक एग्जिस्ट करता है और मुश्किल होता है बहुत सारी. आई नो आप एम्पावर्ड हो, मैं एम्पावर्ड हूँ, हम कहेंगे आई डोंट थिंक सो अब ऐसा कुछ कहीं पर होता है, लेकिन दिस इज
very much, existing in our society. So I would want to tell women that please आप अपने potential को जाने, आप अपनी capacity में बहुत कुछ कर सकती हैं. I mean, when I started, I've done my master's in mass communication. I worked in the media, but then when I resumed my, समझ लो आपकी अपनी मैंने दोबारा से journey शुरू की, तो I started writing, I started blogging. Because that was what I could do with little kids. I did not have much of an option, so I started blogging और मैंने online लिखना शुरू कर दिया और लोगों ने ऐसे ही appreciate करना शुरू. I would just pen down whatever was going inside my head, and that became a kind of channel for me to express myself. I volunteered with the Citizens Foundation. The Citizens Foundation, you may know, they have over 1,000 schools across Pakistan. So I thought, if I can't go to get something, I can go to give something. तो उनका प्रोग्राम once a week रहबर प्रोग्राम. आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग विद दैट कि मैं हफ्ते में एक दिन कुछ घंटों के लिए तो मैनेज कर सकती हूँ. सो मैं और बच्चियों को, गर्ल्स को, औरतों को कहती हूँ कि पानी के से सीखें कि पानी जो है ना वो रास्ता बना लेता है, उसमें ये रिजिडनेस नहीं होती, वो अकड़ता नहीं है. तो आई टेल गर्ल्स टू बी लाइक वाटर. अपना रास्ता बनाइए. आपका कोई पैशन है, आपको किसी चीज का शौक है, तो उसके रास्ते बनाने के बहुत से तरीके हैं. सो डू फाइंड दैट. सो क्लाइमेट इज अ बिग कंसर्न फॉर मदर्स. आई सी नेचर एंड मदर नेचर एंड विमेन. आई सी द लिंक देयर. मुझे लगता है कि एक औरत क्योंकि नर्चर करती है एक बच्चे को, उसकी किस तरह से उसको पालती है, तो नेचर भी हमें किस तरह से हमारा ख्याल रख रहा है. वी कॉल इट मदर नेचर. सो विमेन कैन अंडरस्टैंड. और जिस तरह से नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उसका, आपसे मैं पहले बात करी थी, जो उसका लेवल है, आप देखें अभी कराची में जो फ्लड्स हुए, फिर हमें जब डेंगू का इशू आता है, फिर जब यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, स्मॉग का इशू आता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, ये सब इट इज हिटिंग होम. नाउ इट्स कमिंग होम. I interviewed someone and he said, the glaciers are melting and when the ice will melt, there will be floods, the crops will be destroyed, लोगों का livelihood damage होगा. So हमें इन सबको अंडरस्टैंड करना है. एंड अमन इन आवर ओन कैपेसिटी, आई नो कि हम कोई गवर्नमेंट लेवल के डिसीजंस तो नहीं ले सकते, लेकिन अपनी कैपेसिटी में छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें. और इसके अंदर जो मैं लास्ट आपको कहूंगी, अमन, हमारा दीन सबसे बड़ा एडवोकेट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है. वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनी साइंटिस्ट, वी डोंट नीड एनी एविडेंस. हमारे दीन ने कहा है कि अगर आप दरियाए फरात के किनारे पर भी हो और वहां पर भी आपने पानी जाया किया, तो उसका भी हिसाब होगा. कि आपके सामने दरिया है और तब भी अगर आपने पानी को जाया किया तो उसका भी आपसे पूछा जाएगा. सो हमारे दीन में तो आपको पता है दरख्त लगाना सदका जारिया है. तो इन्वायरमेंट का किस तरह से, जानवरों से हुस्ने सलूक का बारे में हम सब ने पढ़ा. सो हम वी डोंट नीड एनी साइंटिफिक एविडेंस टू स्टार्ट एक्टिंग राइट अवे. यस, साइंटिफिक एविडेंस इज अ ग्रेट अवेकनिंग, बट हमारे लिए अपना रिलीजियस मोटिवेशन भी बहुत जगहों पे काम कर सकती है. और उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दें. अपने घर में प्लास्टिक रिडक्शन करें. You may know a lot of initiatives that are working for zero plastic, जो products ला रहे हैं ऐसे. So उनको opt करना शुरू करें, उनको promote करना शुरू करें. Step by step we will get there. There are countries that have achieved zero plastic. वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है. So saying that it's impossible is, I think, बिल्कुल ही एक जहालत की बात होगी. करने वाली विल होनी चाहिए. तो ये एक ऐसा कॉज है जो इज अ ग्लोबल इशू. इट्स वी ऑल शेयर द प्लैनेट, वी ऑल शेयर द एयर, we all share the water. We have to start taking care of it. बिल्कुल बिल्कुल, I couldn't agree more, सदा. And for the people watching, आपने कहा कि बहुत से initiatives ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में finally बात करें. I'm so happy to see that there's so many people in Pakistan right now जो which are finally talking about climate change, and we being one. We have a sister company, DS Global, and we have recently launched a CSR initiative that is EcoSquad. And for the people watching, you can join our Facebook group, and we do drives, we do plantation drives, we are having a Say No to Plastics campaign. So join us for this good cause. And talking about cause, Sadaf, I'm so happy to see what wonderful work you guys are doing it for a cause. So before I come to hearing something from Razi Neha, I'll ask one last question. Is that what is the one ultimate cause that we all should share? You think so? And secondly, there's also a part of this question कि बहुत से जिस पे आपने भी बात की कि we being women, we know a lot of women who have a lot of potential, who can work on so many good cause, but there are many factors which are stopping them. So how they can start from just putting in a little effort, and we can make this world a better place together. हमारे सेशन के ऊपर किसी ने कहा कि ये फोन पकड़ के कहा कि ये आपके पास, you have the power in your hands, and I actually thought that it was a very strong statement.
अब इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज एनीमोर, यू कांट से कि मैं कैसे करूं। आपको पता है एक छोटा सा बच्चा भी यूट्यूब की वीडियोस देखकर तो बड़े बड़े आर्ट वर्क्स बना रहा है। इट्स व्हाट यू पुट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू। अगर कोई प्लांटेशन पे काम करना चाह रहे हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस, मिलियंस ऑफ ट्यूटोरियल्स कि आप अपने घर में एक वेजिटेबल पैच कैसे कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन की साइड पे कुछ कर रहे हो, देयर आर सो मेनी एनजीओज दैट आर आस्किंग यू टू जॉइन देम एंड हेल्प देम एजुकेट चिल्ड्रन, और आपने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप अपने लिए कोई स्किल डेवलपमेंट चाह रहे हो, सो आई नो दीज पीपल हु लर्न ज्वेलरी मेकिंग थ्रू वाचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो अब एक मुश्किल नहीं रही। पहले तो लोग, आपको पता है, मीलों चलते थे और दिनों के सफर होते थे, और लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी ढूंढनी पड़ती थी, किताब ढूंढनी। अब तो इट्स अ क्लिक अवे। सो मुझे लगता है कि हमारे एक तो हमारे लिए एक सोचना कि हम करना क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। फाइंडिंग योर वाई वाली बात आ गई कि मैं, और एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि पहली गो में आपको समझ आ जाएगा मैंने जिंदगी में ये करना है, कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लाइफ इज अबाउट ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंट करना। आई आई रियली वांट टू हमारे यहाँ पे एक टैबू वर्ड है फेलियर। आई थिंक फेलियर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंस टू अ पर्सन, बिकॉज आप सीखते हो। नो वन इज born an expert. I keep telling my students even के कोई बेबी पैदा होते साथ तो चलना नहीं सीखता, वो क्रॉल करता है और कितनी दफा गिरता है। तो इफ अ बेबी कैन बी एज रेजिलियंट एज दैट, सो हमारा तो ज्यादा रेजिलियंट होना बनता है। सो नेवर बी अफ्रेड टू फेल। हमारे इवेंट्स होते हैं अमन, और देयर समटाइम्स वी हैव हैड टाइम्स वेयर वी हैड like 2 to 3 people turn up, but we kept going. We kept keeping our events one after the other, one after the other. We said this does not define us. We'll just keep going. We'll just hosting our events, and people will come. People will understand. There will always be a market. There will always be a community. There will always be someone out there जो आपके आइडिया से रेजोनेट करेगा। और आपको पता है इतने लोग वेट कर रहे होते हैं कि आप कुछ करो तो वो पीछे आपके आए। So many people are waiting for you to take that initiative. So I would say please, और जो भी cause हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा it's very close to my heart is जो हमारे टॉलरेंस का और हार्मनी का। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आ गया है। जितनी एजुकेशन बढ़ी है, यू वुडंट एक्सपेक्ट पीपल टू बिकम सो एक्सट्रीमिस्ट। हेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देख रहे हो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि यू कांट बिलीव कि ये किसी इंसान का काम है, विदाउट जैसे न्यूजीलैंड का इवेंट है, कश्मीर में जैसे हो रहा है, हमारे यहाँ भी जिस तरह मस्जिदों में ब्लास्ट होते। सो ये दिस इज नॉट ह्यूमन, दिस इज। और मैं कहती हूँ कि अगर कोई किसी को ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बना सकता है, तो आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ तो लाना तो ज्यादा इंसान है, क्योंकि हमारी रूह जो है वो तो एक प्योर चीज की है ना। हमारी रूह तो एक अच्छी नेचर पे पैदा होती है, तो रूह तो अच्छी होती है, उसकी फितरत अच्छी है। सो किसी इंसान को अच्छे नजरियात की तरफ लाना, उसको पीस की तरफ लाना, उसको लोगों के साथ हार्मनी में रहना, रिस्पेक्ट और टॉलरेंस को प्रमोट करने की तरफ लाना, मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। व्हेन आई सी कम्युनिटीज विद डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस एम्ब्रेसिंग ईच अदर, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, मुझे लगता है कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा एक सक्सेस होता है, और एक बहुत ही खूबसूरत एक विजुअली इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी पीपल गेटिंग टुगेदर एंड गेटिंग अलोंग टुगेदर। सो ये बहुत मुझे लगता है अब जरूरी है। Great, great. I can't agree more. Very well said. So, lastly, I'd like to hear something from Razi Neha, and then we'll end the session. मैं आपको अपनी फेवरेट नज़म सुनाऊंगी, और ये नज़म मुझे अपने वॉलंटियर काम के नतीजे में एक तोहफे में मिली थी। इसका नाम है मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता किसी के रूठ जाने से, किसी के ना बुलाने से। मुझे अब डर नहीं लगता किसी के कुछ समझने से, किसी की तंज की नजरों से। हाँ लगता था बहुत पहले, पर ऐसा अब नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता। हाँ लगता था यही मुझको, जो कहते हैं वही हूं मैं। जो कह दे खाक तो मैं खाक, जो खुशबू तो कली हूं मैं। जो अच्छा तो बहुत अच्छा, जो बुरा तो बदी हूं मैं। जो भी तुम मुझको कहते हो, हाँ बस वही वही हूं मैं। बहुत अरसा यूं ही गुजरा, न खुद को जान पाए हम। इधर देखा उधर देखा कि किस रास्ते पे जाए हम। जो रास्ते थे एक अरसे से, उन्हीं रास्तों पे चल दिए। नए रास्तों का ना सोचा, कहीं भटक ना जाए हम। बहुत महफूज थे वो रास्ते, बहुत आजमाए हुए थे वो, पर उन पे चल के ये जाना कि दिल को भा ना पाए वो। सो चल दिए नए रास्तों पर, अकेले ही सफर पे हम। डर और बेयकीनी थी, पर चलते ही गए हरदम। नए रास्ते, नया मंजर, नया हर एक नजारा था। नई हर सोच, नई किरणें, बड़ा मशहूर दयारा था। वहां खो से गए थे हम, अनोखी सी उस दुनिया में।
जहां हर शय निराली थी वहीं के हो गए थे हम। वहां के दिन भी रोशन थे, वहां पे रात भी ढलती थी। वहां पे खार भी चुभते थे, वहां कली भी खिलती थी। वहां पे डर भी लगता था, वहां महफूज भी थे हम। वहां सब कुछ भी दिखता था, वहां बेनूर भी थे हम। जो दिखता था वो इंसान था, जो ना दिखता वो जाहिर था। जो दिखता था वो अंदर था, जो ना दिखता वो बाहर था। बुराई भी थी वहां बहुत, मगर कोई बुरा ना था। बहुत भले भी थे वहां, वो अनोखा जहां ना था। अनोखी थी तो बस थी सोच, अनोखा तो नजरिया था। अनोखी ना ये आंखें थी, अनोखा दिल का दरिया था। बहुत सैर होके लौटे हम, पर अब भी तो वही है हम। वो रास्ता हम में बसता है और उस रास्ते पे बसते हम। मुझे अब डर नहीं लगता नए रास्तों पे जाने से, नाकामी के खजानों से, बहुत पीछे रह जाने से। वो है ना जो ये कहता है, मैं हूं ना फिर क्यों डरता है किसी तूफान के आने से, भंवर में इस जमाने के, क्या अपने क्या बिगाने से। हाँ लगता था बहुत पहले, पर ऐसा अब नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। Wonderful, wonderful. I really loved it, Sadaf. It's beautifully written. It's surely tempting me to read the whole book. So thank you so much. I really, really enjoyed today's session, and I got to. I'm very. It's always so. I'm so glad to see the women progressing, and when women are working towards something and they're stepping out of their comfort zones to do something for others, it's beautiful to see. So thank you so much for joining, Sadaf. Thank you so much for having me. It was a pleasure meeting you for the first time we've met, and I thoroughly enjoyed it. I hope we stay in touch. Yeah, sure, sure, sure. Thank you so much. Thank you. So that was one very, very enjoyable session with Sadaf, and I hope you guys also enjoyed it and got something positive for it. So I hope you guys got the point that it's very important that you have to live for a cause. It's like not as just something. If you give something, you'll always get something back. This concept is just as simple as that. So I'll meet you in another session next week. And till then, stay safe and do something good for others. And it can be just giving a smile to others. So keep smiling and keep shining. And we'll be back with another session next week.